Sorry. Thank you, madam, for giving me this opportunity. Through you, madam, I'd like to state the following. That the state of Sikkim has, first of all, a very good power situation. We are exporters of hydropower. Madam, we are also, it's a mountain state, so therefore it has got a very cool atmosphere and very easy for these majors like who do this cloud servicing. That means many of these server farms can be set up in places very well, in places like Sikkim, which are in the mountains. It's cool and it can be run through the power generation, which is also very good, and we have excess supply. But the problem, madam, is that we need connectivity, and to get the connectivity through the pipes, the internet pipes is the main problem that we are facing, and so therefore this huge potential of economic upliftment can not take place. I would request through you to to ask the Honorable Minister whether we can get fault-tolerant pipes into the places, into the mountains like Sikkim, where forever there are landslides and other such calamities. That suggestion is quite welcome, madam. I can only assure the honourable member that as far as our government initiative is concerned of optical fibre network, for hilly areas we are also having the option of wireless by Wi-Fi connectivity, as also by by the electricity poles. So we can work it together. But what is important is that cloud services should be available in Sikkim. It is a very exciting proposal. If the state government comes with a structured proposal to us, we'll surely look into it. Question number 44, Shri Bharati Mohan. Question number 44. उत्तर सभा पटल पे रखा गया है. Yes, supplementary, please. Honorable Speaker, Madam, under the able leadership of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Talavi Amma, in her guidance, Tamil Nadu Skill Development Corporation is being allotted an annual budget of rupees 150 crores every year from state funds, which is unique in our country. So far, Tamil Nadu Skill Development Corporation has trained more than 2 lakh youths in Tamil Nadu. Whether Government of India have any scheme of private financial and technical assistance for skill training activities in states, particularly for state-owned skill development business for the benefit of youths. Speaker, ma'am, this is a very important question, and I appreciate the concern of the honourable member from Tamil Nadu. And I appreciate the effort made by the Tamil Nadu government and the Chief Minister as far as the skill development activity is concerned. And also the initiative taken to create a skill development corporation, because what was happening in Government of India, that many respective central government departments were sending money to the state governments, and the respective departments in the state governments were spending the money for skill development. Wherever a corporation has been created or a mission has been created, the entire pool of money which went from Government of India has been pooled together to do this work. And I think Telangana, Rajasthan, Maharashtra, Kerala, many states have started doing it. Even Jharkhand, Rajasthan, many states have started doing it. We are expecting many more states to follow that. And under a World Bank project which has been approved by the government, we will try to strengthen these skill missions established by the state. As far as resources are concerned, I would like to bring it to the knowledge of the honourable member that under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, 25% of the money has been earmarked for the states, and I would like to repeat it on record. The only subject there would be that the state government has to prepare a proposal and send it to us, so that under the
guidelines of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, we can devolve as much money as you want for training, because the target is to train 1 crore people, and for the Government of India and the Prime Minister, all the states have to partner us as far as skill mission is concerned. So we have made provision under the new cabinet approval which has come from the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and out of those 12,000 crores, we have marked about 25% of the money for the states, which can be availed by the states, and at the same time under the World Bank project, we are trying to create an institutional capacity for the skill missions established in the states so that they can be proliferated across the country. Second supplementary. Whether any steps are being taken for conversion of various skill training programs conducted by multiple central and state government agencies. Thank you, Madam. Well, I could not actually understand this question, but the fact which I would like to place on record, Madam, today is that the institutional framework of training in this country which existed prior to the creation of the Skill Development Ministry was in the ITIs under DGET. So the challenge of the government was to create an ecosystem and create convergence. Many states and many central departments were doing the schemes for skill development on their own. Now we have brought them under a platform that whoever is wanting to do skills should be under a structured format. And we have, after the ministry was created for the first time in independent India, to bring all the schemes together and to give them a structured approach, the Prime Minister created this separate ministry, and actually I am a startup ministry. The Ministry of Skill Development is a startup ministry, and we have started showing results. We have created a mission which is chaired by the Prime Minister, and we have also put the policy in place so that whoever has to do the action of skill development should take the guidelines from the policy. And what we have done is created a common norms so that anyone wanting to do skilling should know exactly how many hours, what is the QP, what is the requirement, what is the curriculum, what is the process of assessment. We have put that in place. As far as skilling is concerned, the long-term skilling has been taking place in ITIs, which we have seen across the country, which are more than 13,000. And we have also amended the Apprenticeship Act, which also trains individuals in the industries on a shop floor. So that thing has been created, and we have allotted 10,000 crores for incentive to the industry to do training on the shop floor. Then the short-term skills has been covered under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and of course integration with school. I can tell you, ma'am, the day I joined this ministry, we had a zero budget. In 1 year, we took it to 800 crores. And today, the Prime Minister, under his own mission, the total availability of money for the whole project of skill development is touching 32,000 crores in next 4 years. And this is what we have done in 1.5 years. Now it's the time to roll out the schemes, and now it is the time to give it to the Honorable Members of Parliament, which has been approved by the Honorable Prime Minister. Shri Anurag Thakur ji. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पहले तो सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक अलग से मंत्रालय युवाओं के लिए विशेष तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए खोला गया है, और इसके माध्यम से करोड़ों युवाओं को आने वाले वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। मंत्री जी ने कहा कि स्टैंड अप मंत्रालय है। मैं कहना चाहूंगा स्टैंड अप मंत्रालय हो सकता है, बट ही हैज टू स्टार्ट एंड रन फास्ट बिकॉज द एंटायर कंट्री इज लुकिंग एट हिम एंड हिज मिनिस्ट्री। और ऐसे युवा नेतृत्व से यही उम्मीद है कि करोड़ों युवाओं को जल्द से जल्द वो मौका मिल पाएगा। अध्यक्ष जी, समस्या यहां पर है कि प्रदेश की सरकारें अगर अपना सहयोग ना दें तो इस क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मंत्री जी ने पूर्व में कहा है कि सांसदों की भूमिका क्या हो, उस पर भी उसका उल्लेख किया गया। मेरा निवेदन आपके माध्यम से केवल इतना है, जर्मनी जैसे देश जो लगभग 125 वर्षों से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ड्यूअल एजुकेशन के सिस्टम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर इंडस्ट्री का योगदान रहता है, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का योगदान रहता है और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का योगदान रहता है, तो क्या माननीय मंत्री जी पूरी इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके कारण वही शिक्षा दी जाए जिसके कारण युवाओं को रोजगार भी मिल पाए
और उसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कारण उस इस तरह के स्वरोजगार मिले जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का देखभाल कर सकें। माननीय अनुराग जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया और ये बात सच है कि आज देश में 18 लाख इंजीनियरिंग के सीट्स है, जिसमें लगभग 8.5 लाख इंजीनियरिंग की सीट्स खाली हैं। कोई नौजवान वहां एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है और आज बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो बाहर आ रहे हैं वो ऐसा वेतन उनको मिल रहा है जो इंजीनियरिंग के बराबर नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारा जो सिस्टम बनाया गया था, जो आपका अनुरोध है कि हम किस प्रकार से इंडस्ट्री को जोड़ें, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि चाहे ट्रेनिंग आप क्लासरूम में जितना भी करा ले, आप लेबोरेटरी में जितना भी ट्रेनिंग करा ले, जब तक वो बच्चा फैक्ट्री में जाके काम नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं है कि उसके हाथ में वो कौशल पहुंच सके और इसीलिए इंडस्ट्री को जोड़ना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है जो 1970 से जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था उसमें 20वां पॉइंट था 1970s में कि अप्रेंटिसशिप एक्ट को हम अमेंड करेंगे। महोदया, 30 साल के बाद देश में हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप एक्ट को अमेंड किया है और ये बताना चाहूंगा, कई देशों का मैं आंकड़े नहीं देना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि चीन में 3 करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप यानी कि फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेते हैं, जापान में 1 करोड़ लोग फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ, जर्मनी में लगभग 30 लाख लोग ट्रेनिंग लेते हैं फैक्ट्री में। आज भारतवर्ष में, और ये सदन को पूरी तौर से जानना चाहिए कि भारत में सिर्फ अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जो होती है मात्र 2.5 लाख है, कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप का प्रोत्साहन देने के लिए और आने वाले दिनों में माननीय सांसदों से कहूंगा और जितने भी हमारे माननीय मंत्री यहां बैठे हैं जिनके पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आज अगर वो तय कर ले कि जो नया एक्ट है उस जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है मिनिमम 2.5% उनको रखना और मैक्सिमम 10% से, अगर हमारी सरकार के माननीय मंत्रियों को मैंने लिखा है कि आपके यहां अगर PSU है, माननीय मनोज सिन्हा जी यहां बैठे हैं, सुरेश प्रभु जी यहां बैठे हैं, अप्रेंटिसशिप जो इनके यहां आ सकते हैं, सबसे पहले तो भारत सरकार के PSU से तमाम मंत्रियों से आग्रह है कि 10% सीट आप अप्रेंटिसशिप में लागू कर दीजिए ताकि करोड़ों नौजवानों को सीधा वहां ट्रेनिंग दे सके। और ऐसा नहीं है माननीय मंत्री जी, हम आप अगर हमारे बच्चे को ट्रेन करेंगे तो हम उस PSU के खाते में 18,000 रुपया प्रत्येक बच्चा पर प्रत्येक साल इस मंत्रालय से निकाल करके हम आपको दे देंगे। तो अगर इस माननीय सांसदों के जो वो ट्रेनिंग की बात है उसको अगर हमें पूरा करना है और इंडस्ट्री को भी हम लोग कह रहे हैं, और इंडस्ट्री भी जो ट्रेनिंग करती है, आप हमारे बच्चों को जो ITI से पास आउट हैं या PMKVY से पास आउट हैं, अगर आप अपने उद्योग में, और ये पैसा बच्चों को नहीं जाएगा, सीधे जो इंडस्ट्री ट्रेन करेगा उसके खाते में जाएगा। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने 15 दिन पहले की बैठक में कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपया अप्रेंटिसशिप के लिए दिया है ताकि हर बच्चे को 2 साल की ट्रेनिंग में 18,000 रुपया हमारे खाते से आपके पास चला जाए। मैं माननीय जो अपनी सरकार के माननीय मंत्री जो PSUs देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा, और अब अप्रेंटिसशिप सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं होगा, सर्विसेज के लिए भी होगा, होटल इंडस्ट्री में भी होगा, उसके लिए भी हम पैसा देंगे ताकि इंडस्ट्री में ट्रेनिंग हाथों हाथ मिले। और जी, इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट इसी के तहत है, APY के तहत पहले भी इंडस्ट्री करती थी लेकिन अब उनका रास्ता पूरा खोल दिया गया है ताकि बड़े मात्रा में, और अभी भी लोग कर रहे हैं, ये 2.5 लाख को अप्रेंटिस को अगले 3 वर्ष में 50 लाख अप्रेंटिसशिप हमें तैयार करना है और उसके लिए उद्योग को हम पूरी तौर से समर्थन दे रहे हैं नई योजना के। और एजुकेशन के साथ जोड़ने का वो तो एक लंबा अभियान है जो 67 वर्षों में नहीं हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने अब प्रारंभ कर दिया है। हम लोगों ने इस काम को चुनौती के साथ स्वीकार किया है और शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ने का अभियान शुरू करेंगे, लेकिन शायद हम एक जनरेशन वेट करना पड़ेगा बिफोर द होल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस। It's an ambitious program, ma'am. No one actually had applied, they had applied mind, but the ecosystem which had to be created for skills, the language for skills, the understanding for skills, the employability for skills, the training for skills, the NSQF and the training module for skills has been created in this country and we are trying to proliferate it. The Honorable President of India on 15th of July, which was the World Skills Day, we have celebrated the 2nd anniversary of skills in this country, and a huge program, one of the largest social inclusion program
क्योंकि ये मंत्रालय ऐसा है महोदय कि मुझे व्यक्तियों से, बच्चों से डील करना, ये एक शिक्षा की तरह है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखे। एक रूपरेखा तैयार हो गया, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो या टेलीकॉम मंत्रालय हो मनोज सिन्हा जी का, या रेलवे मंत्रालय हो या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो या होम मिनिस्ट्री का उड़ान हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में हो, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हो। ये बहुत बड़ी योजना है और इसका रूपरेखा हम लोगों ने देने की तैयारी कर ली है और अब हम लोग प्रोग्राम्स रोल आउट करेंगे। मैडम, इतनी बड़ी योजना भारत ने कभी ना देखा होगा और ना देख सकेगा, जो व्यक्ति और बच्चों से है, जो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार और दिव्यांग होगा। से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पेशेंस रखना कठिन जाता है कभी कभी। श्री प्रताप राज यादव लाल, यस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से कौशल विकास मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें आज भी 60% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। आज कृषि में नई तकनीक आ गई है और रोज नई नई तकनीक का संशोधन कृषि में भी कृषि भूमि में पर भी हो रहा है। कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसे तकनीकी को समझने और उस पर कार्य करने के हेतु कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसे इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग में आप वहां पर बच्चों को टेक्निकल प्रशिक्षण देने के लिए वहां पर सरकार की तरफ से 18,000 रुपए साल के दिए जाते हैं, लेकिन खेती में काम करने वाले के लिए भी टेक्निकल प्रशिक्षण देने के लिए क्या एकाधी कोई योजना इस कौशल विकास मंत्रालय ने बनाई है? अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि खेती में अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए और टेक्निकल लोग खेती में आने के लिए क्या कौशल विकास के अंतर्गत कोई योजना इस मंत्रालय से तैयार की गई है? धन्यवाद। इस सवाल का मैंने उत्तर दिया, लेकिन सचमुच में ये बहुत ही जटिल सवाल है और इसमें 3 पार्ट है। एक तो है कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए एक्सटेंशन का काम, जो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए वो कृषि मंत्रालय करता है, लेकिन वैसे लोग जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उसके हाथ में हुनर देने का काम हम लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल इस काम को करेगा और उसमें लगभग 10 से 15 हजार हर बच्चा जो कृषि विज्ञान केंद्र में या अन्य स्थान पर जाके जहां प्रशिक्षण शुरू करना है उसमें एग्रीकल्चर साइड के स्किल्स के बारे में हम लोगों ने प्रयास किया है। और ये 2 भिन्न क्षेत्र है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर हार्ड स्किल्स एंड अदर स्किल्स is are 2 different things which we have to segregate and work accordingly. नंबर 45 डॉक्टर के कामराज। क्वेश्चन नंबर 45 Madam, the statement is laid on the table of the House. Honourable Speaker, Madam, thank you for allowing me to raise the question, Madam. My first question is, Madam, all over India, still there is no railway connectivity to many cities and towns. But this government is vigorously pursuing the high-speed railway project between Mumbai and Ahmedabad at the cost of 98,000 crores, which already has a strong air connectivity, railway connectivity and first-class express highway, Madam. My first question to the Minister is, why this railways has chosen randomly a regional corridor between Mumbai and Ahmedabad instead of a diamond quadrilateral corridor which will connect a major metros like Mumbai, Delhi, Chennai and Kolkata. Thank you, Madam. I thank the honourable member for pointing out this. I would like to assure the House that the Government of India is spending on the rail development infrastructure more than double of any other year in the past. So the money that is spent on high-speed railway between Mumbai and Ahmedabad has nothing to do with the railway budget as a whole. You must have noticed each state has got more than double the amount of the previous year of last 2 years consecutively. So if we have increased it double, last year again we doubled it. So this has been baked in. As far as the regional policy is concerned, I would like to tell you that we are pursuing many high-speed railway projects.
Delhi Mumbai, Mumbai Chennai, Delhi Kolkata, Delhi Nagpur, Mumbai Nagpur. Also, very interestingly, about my friend is concerned about Chennai. I would like to tell him that we are also pursuing the project concerning Chennai to Delhi, Chennai, and that project also is being pursued in a very high manner. We are also doing some project in south. We are also pursuing projects in the north, in the east, and we are pursuing projects all over the country. So therefore, it is not only regional bias of Mumbai to Ahmedabad that was already selected by the previous government for feasibility studies. We have only taken it forward. But I would like to tell you that we are taking number of steps to ensure that high-speed railway project will be taken. I will just give an example of few projects. We are going for semi-high-speed corridor Delhi-Agra, Delhi-Chandigarh, Chennai, Bangalore, Mysore, Delhi-Kanpur, Nagpur, Bilaspur, Mumbai-Goa, Mumbai-Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Nagpur, and also in this process we are pursuing other projects including connecting Delhi, Chandigarh, Amritsar. Also we are connecting Vijayawada and Bangalore and other areas. So I would be very happy to tell you that we are pursuing different kinds of projects in different areas. For example, we have already completed the pre-feasibility studies for Pune, Mumbai, Ahmedabad, which is 650 kilometers. Delhi, Agra, Lucknow, Varanasi, Patna, which is 991 kilometers. Howrah, Haldia, 135 kilometers. Hyderabad, Dornakal, Vijayawada, Chennai, which is also completed. Chennai, Bangalore, Coimbatore, Ernakulam, Tiruvananthapuram. Delhi, Jaipur, Ajmer, Jodhpur. Delhi, Chandigarh, Amritsar. So these are the pre-feasibility studies we already completed. Madam, my second question is, Madam, today I checked the website, Madam. The cost of travel between Mumbai to Ahmedabad is about 1,500 rupees by air travel, Madam. Where a railway is charging first class ticket 2,000 rupees, Madam. If you are going to bring a bullet train, whether this cost will be less than the airfare, Madam. Yeah, please. Madam, when the feasibility study was conducted by JICA, which is the world's reputed organization, which is the Japanese government arm as well as the Indian government together, they found out a fare which will be affordable to people when the project will be completed 6 years from now. Also, the IIM Ahmedabad did a study and they also concluded that this is definitely a doable and feasible project. But if you want, this is not a compulsion. Those who don't want to travel by high-speed railway, we are providing them alternative. Some can travel by train, some can travel by bus, some can drive their own vehicle, some can walk if they're really healthy, some can go by flight. So it is all possible. Shri Ramdas Tadas. जानना चाहता हूं कि प्रास्ताविक दिल्ली नागपुर, नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेलवे ट्रैक पर सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाएगा? यह रेलवे ट्रैक निर्माण कब तक प्रारंभ करने की योजना है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेलवे ट्रैक के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण में कृषि उपजा भूमि को कम से कम लेने हेतु सरकार क्या सोच रही है? ये ट्रैक के लिए सर्वे की शुरुआत अभी हो कर रही है। हमने चीन के साथ में उनके लिए सहयोग किया है और ये काम भी जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद में ये काम जल्दी किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो नागपुर के लिए काफी अलग अलग तरीके से नागपुर जोड़ा जाएगा, बिकॉज नागपुर इज एट द हार्ट ऑफ द कंट्री, सो दैट फ्रॉम साउथ, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ, एवरीथिंग, ऑल द हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स विल essentially be connected to Nagpur anyway. So you are very lucky and you are very fortunate to represent a constituency like Nagpur in the parliament, which is the heart of India. So you are at the heart, Nagpur is the heart of India and you are a part of the heart of that heart. Thank you. Question hour is over. Papers to be laid on the table. Srimati Sushma Swaraj ji, item number 3. Item number 3, VK Singh ji will do. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मामलों की मंत्री के नाम के समक्ष क्रम संख्या 3 में दर्शाए गए दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 4, श्री जितेंद्र सिंह जी।
अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 जनरल वीके सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष क्रम संख्या 5 में दर्शाए दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 सेक्रेटरी जनरल। Madam, I have to report 2 messages from Rajya Sabha as listed. Madam, I also lay on the table the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Bill 2016 as passed by Rajya Sabha on 19 July 2016. Item number 7, Dr. Thambi Durai ji. Madam Speaker, I beg to present the 23rd report Hindi and English versions of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions. Item number 8, Jagat Prakash Nadda ji. Madam, in pursuance of the provisions of the Direction 73A of the Directions of the Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in the 82nd, 83rd, 89th and 90th reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the demand for grants for the year 2015-16 for the 2 departments under the Ministry of Health and Family Welfare. Item number 9, Sri Y.S. Chaudhary. Respected Madam, with your permission, I beg to make a statement regarding on the status of implementation by the Ministry of Earth Sciences regarding demands for grants 2015-16 on the recommendations contained in the 260th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests mentioned against my name at serial number 9 of today's revised list of business. The present status of implementation is as per the statement which is laid on the table of the House. Thank you. Item number 10, Sri Thawarchand Gehlot ji. Thawarchand ji, motion, your election motion. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ज के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्ययन केंद्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में सभा में अपना कार्यकाल समाप्त होने की अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। धन्यवाद। The question is that the motion moved by Sri Thawarchand Gehlot be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Item number 11, Professor K.V. Thomas. Madam, I beg to move that this House to recommend to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts for the House for non-expired portion of the term of the committee which Sri Vijay Goyal appointed as Minister, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. The question is that the motion moved by Sri K.V. Thomas ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Item number 12, Sri Shanta Kumar ji. महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य श्रीमती कृष्णा राज के मंत्री के रूप में नियुक्त होने के पश्चात लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम 3 के अंतर्गत उनके स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि हेतु उसके सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें। The question is that the motion moved by Sri Shanta Kumar ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Again, Sri Shanta Kumar ji. महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री प्रफुल्ल पटेल और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के सेवानिवृत्त होने से उनके स्थान पर सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बची शेष अवधि के लिए राज्यसभा से 2 सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो
तथा इस प्रकार राज्यसभा द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। The question is that the motion moved by Shri Shanta Kumar ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Again, Shri Ahluwalia ji. Honorable Madam, I rise to move the following, that this House do agree with the 32nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July 2016. The question is that the House do agree with the 32nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July 2016. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The report is adopted. Madam Speaker. Madam Speaker. सदस्यगण, मुझे श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रोफेसर सौगत राय, बदरुद्दोजा खान, के सुरेश, राजेश रंजन, भगवान मान, कौशलेंद्र कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.सी. वेणुगोपाल, के.वी. थॉमस, जोस के मणि, जयप्रकाश नारायण यादव, भर्तृहरि मेहता, पी. करुणाकरन, सुप्रिया सुले जी से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों के माध्यम से उठाए जा सकते हैं, अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की अनुमति प्रदान नहीं की है। One minute. You have, Madam, you have promised to take up this Gujarat issue in 0 hour. I will allow. And our Suresh is there. Kindly allow to take up. This is a very, very important issue. And that too in Gujarat it is happening. And you are also aware of it. Therefore, kindly permit Suresh to speak on this. 1 minute. 1 minute. I will allow. मगर मुझे please take your seat. Please take your seat. मैंने कभी मना नहीं किया था, पहले भी कहा था, और ये आप लोगों के बनाए नियम है कि क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब नहीं करना, कागज नहीं लहराना, कई सारी बातें नियम में आपने की। मुझे दुख होता है, लेट मी सी फर्स्ट से समथिंग, मेरा भी कुछ अधिकार बनता है। ये सब कहने के बावजूद, और मैंने कहा था कि मैं शून्यकाल में जरूर करूंगी, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि ऐसी चीजें हाउस में उठना चाहिए। मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है कि पूरा 1 घंटा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी हमने हाउस को डिस्टर्ब रखा। प्लीज डोंट डू दैट। मैंने कभी मना नहीं किया है, प्रश्न उठाने के लिए मना नहीं किया है, उचित समय पर मैं देती रहती हूँ। इसलिए फिर एक बार आप सबसे निवेदन है कि ये पद्धति नहीं है, नियम हम सभी लोग बनाते हैं, और हमेशा कहा है कि ऐसे को ये पेपर्स के वेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने नियम बनाए, ये पद्धति नहीं करे। मैं अलाउ कर रही हूँ, आपने कहा था, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, यस आई विल अलाउ, और अभी मैं शून्यकाल में अलाउ कर रही हूँ। यस कि ऐसा नहीं कि इस सदन में नहीं, मैंने मेरे इस सदन में हम नई प्रथा नहीं डाल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन आवर से पहले कई बार मैंने दिया था, मैं भी एडजर्नमेंट मोशन को प्रिलिमिनरी दिया है, प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट के लिए अवकाश दिया है। प्लीज बहस नहीं करें, मैंने दिया है। कल आपको कहा था और कल आपको थोड़ा अवसर भी दिया था। मुझे भी समझ, चेयर भी कुछ बातों को समझती है। मुझे केवल ये आप सबके सामने निवेदन करना था कि ऐसी प्रथा मत अपनाइए, ठीक नहीं है। Madam, I would like to invite your kind attention in the August House, Madam, increasing the incidents of atrocities against Dalits in Gujarat. Madam, in Gir Somanatha district of Gujarat, 7 members of Dalit family were beaten up for skinning a dead cow, and after beating up them, the attackers took them to Una town, paraded them on the road, and beaten them in the daylight on the way of the police station. Madam Speaker, despite the family members told that they are only skinning the dead cow and not slaughtering it, the attackers brutally beaten them up, paraded on the road, half naked, and taken to the police station. Yesterday, 5 Dalit youths
consumed the poisons at Rajkot as a protest against the attack, as they lost faith in the government in protecting their life and property, madam. A Dalit youth, Hemant Solanki, who had consumed pesticides as a protest against the atrocities, died at a hospital in Junagadh. In later incidents, more than a dozen Dalits who had similarly tried to commit suicide to protest atrocities on their community were being treated in different hospitals, madam. Meanwhile, hundreds of Dalit protesters are on state path for justice. The BJP government in Gujarat have deployed state reserve police in Rajkot and neighboring districts and created emergency like situation, madam. Madam, the violence is RS agenda instigated by upper caste lobbying to disintegrate and eliminate Dalits. RSS is trying to Dalit Mukt Bharat, sir, madam. RSS is trying to Dalit Mukt Bharat. That's why this RSS is trying to Dalit Mukt Bharat, madam. That's why this incident is happening, madam. The violence and attack against Dalits are escalating across the state and thousands of Samaj. Hundreds of Dalits are wounded. Now the attack against the Dalits, both the upper caste and police, rampant the total land order situation in Gujarat is danger, madam. Very sensitive to all. Please, madam, I am telling truth, madam. The entire state law and order situation is danger. The situation is spreading all the districts. All newspapers have reported the news. Situation is very serious. The Gujarat state government is totally failed for protecting the Dalits in the state, madam. The BJP sponsored attack is going in Gujarat. BJP sponsored attack is going in Gujarat. This is Gujarat model. This is Gujarat model. You tell us. This is Gujarat model. This is Gujarat model. This is Gujarat model. You tell us. So, sir, on emergency situation, emergency in Gujarat, it is the agenda of BJP polarized community before the assembly election 2017, madam. It is not only in Gujarat, all the BJP ruled state. Rape, killing and other forms of atrocities against SC, ST are increasing, madam. So situation is very bad, and also, madam, the situation is very serious, madam. So you have to appoint a joint parliamentary committee to visit the spot and assess the situation, madam. That is our demand. You have to constitute a joint parliamentary committee and send the team to assess the situation in Gujarat, madam. Situation is very serious. Everywhere the atrocities spread over, madam. राजेश जी, इसी पे सहयोगी बनो ना। इसी पर सब लोग इस पे चर्चा नहीं करें, आप सहयोगी बन सकते। मेरा मानना है इतने गंभीर इशू है, ये किसी न पक्ष न विपक्ष, ये कोई सवाल नहीं है मैडम। मैडम, सवाल है कि कुछ लोग इस हिंदुस्तान में ऐसे होते हैं जो हमेशा इस तरह के सामाजिक सौहार्द को खराब करते हैं, चाहे वो जातीय उन्माद हो, चाहे धार्मिक उन्माद हो, मजहबी उन्माद हो। मैडम, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप कृष्ण की उस चीजों को उद्धृत करिए जिसमें उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को इंद्र के खिलाफ उठाया था मानवता की रक्षा के लिए। आप कृष्ण की उस चीजों को उद्धृत करिए कि जब वो जमुना में कूद करके उन्होंने नाग का वध किया था मानवता की रक्षा के लिए। मानवता से ऊपर कोई जानवर नहीं हो सकता है। इंसान की हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी जानवर को लेकर के। मुझे एक बार नहीं 1 लाख बार एक इंसान को बचाने के लिए 1 लाख गाय मारना पड़ेगा तो मैं मार दूंगा, लेकिन इंसान की कीमत पर किसी भी गाय या किसी भी जानवर की पूजा नहीं की जा सकती है। इसको मैं बता देना चाहता हूं। मैं इसीलिए मेरा आग्रह है कि इस देश को गाय मांस के सवालों पर इस देश को ना बांटा जाए। लगातार जिस तरीके से मांसों के टुकड़ों पर, जिस तरीके से जानवरों के सवाल पर इंसानियत का दुश्मन बनता जा रहा है यह समाज कहां जा रहा है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस समाज को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और एकता के लिए आपको आगे आना चाहिए। यह मेरा आपसे आग्रह है। बहुत ये
गृहमंत्री करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं इसे कि जो हमारे माननीय सदस्य सुरेश जी ने गुजरात से जुड़े एक सवाल को इस सदन में खड़ा किया है, यह बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसलिए मैं कुछ भी कहने के पहले मैं सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है, इसलिए मैं भी जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, कृपया उसे धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुने। प्रतिक्रिया यदि आपको कोई व्यक्त करनी हो तो हमारा स्टेटमेंट समाप्त होने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त करें, सिर मत हिलाइए। यदि नहीं सिर नहीं आप खड़गे जी मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला है, प्लीज। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब कभी आप खड़े हुए हैं तब भी न मैंने बोला है, यदि इधर से हमारे पक्ष से यदि किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की है तो हम लोगों ने बराबर उसे दबाने की ही कोशिश की है, बस शांति कायम करने की कोशिश की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं अनुरोध करना चाहता था कि जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं कृपया वह शांतिपूर्वक उसे एक बार सुने। गुजरात में 11 जुलाई को जो भी घटना घटित हुई है, सबसे पहले तो उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं और उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और सदन को मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 11 जुलाई तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर थे। प्लीज दिस इज नॉट द वे। प्लीज क्या चाहते हैं आप? दलित नहीं, राजनीति चाहिए। आप बोलिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। यस। मैं पूरे दिन खड़ा रहूंगा, लेकिन अपनी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, दो टूक शब्दों में मैं रखना चाहूंगा, मैं यील्ड करने को तैयार नहीं हूं। अब हाँ, तो सुनिए कृपया, आपको जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो, मेरी बात समाप्त होने के बाद आप करिए, मैं उसका स्वागत करूंगा। उस पर जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि 12 तारीख को लौटने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे टेलीफोन करके वो अपने रेजिडेंस पर बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जहां अन्य घटनाओं की चर्चा की, उसके बाद शाम को उन्होंने इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की और उस पर बहुत ही इसको जहां खंडन किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। मैंने देखा कि स्वयं इस घटना को लेकर वो बहुत ही दुखी थे, आहत थे। मैं इस घटना का उल्लेख तो वैसे सुरेश जी ने किया है अपने स्टेटमेंट में, लेकिन मैं भी उसकी बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी अध्यक्ष महोदय यहां पर रखना चाहूंगा। यह ऊना उपमंडल है जिला गिर सोमनाथ में, जहां पर मोटा समधियाला नामक एक स्थान है गुजरात में, जहां पर कि 11 जुलाई 2016 को यह दलितों पर अत्याचार की घटना घटित हुई है। इस घटना में जो विक्टिम थे, गिर सोमनाथ जिले के वेदिया गांव में एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी निकाल रहे थे। फिर उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और लोहे के पाइपों से, लाठियों से, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप आदि से पीटना शुरू कर दिया तथा पीड़ितों से 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। आईपीसी की धारा 307, 395, 324, 323 और 504 और जीपीए की धारा 135 और अत्याचार अधिनियम की धारा 325 के अधीन ऊना पुलिस थाना में दिनांक 11 जुलाई 2016 को 7:30 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। विक्टिम में से एक वशाराम भाई बालू भाई सरवैया ने प्रमोद गिरी, रमेश गिरी, बलवंत धीरू भाई, रमेश भगवान भाई, राकेश रश्की, नागजी भाई,
दहिया भाई अहिर निवासी गिर सोमनाथ जिला के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के नाम हैं, वह वशाराम भाई, बालू भाई सरवैया, बालू भाई, बीरा भाई सरवैया, रमेश बीजल, अशोक बीजल, बेचरा भाई आदि आदि, ये सब सारे उनको जो पीड़ित हैं उनके नाम हैं। मामले की जांच डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो SC और ST सेल का काम विशेष रूप से देखते हैं, गिर सोमनाथ जिले के, उनके द्वारा कराई जा रही है। और कुल 9 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 न्यायिक हिरासत में हैं तथा अन्य 2 पुलिस हिरासत में हैं। IPC की धारा 342, 365 और अत्याचार अधिनियम की धारा 31 को अब तक की गई जांच के आधार पर आगे और जोड़ा जा रहा है। कुल अब तक 4 अधिकारियों, 1 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब पुलिस इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें से कि 1 लाख रुपए की धनराशि उन्हें अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष धनराशि भी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच CID क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। मामले की सुनवाई तेजी के साथ हो, यानी स्पीडी ट्रायल हो, इसके लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद प्लीज पूरा सुनिए। अधीर रंजन जी, आप बहुत दूर हो उससे, बैठिए। यस प्लीज, यू कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। बैठिए गुड़िया जी। नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। गुड़िया जी, बनोगे नेता, बड़े बनोगे। बैठिए प्लीज 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 प्लीज। गृह मंत्री खड़े आप। सुरेश जी, आपकी बात सुनी गई ना, बैठिए। बाद में सुन सकते, अभी बैठिए ना। यस, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट। यस यस, आप यहाँ बोल के आप अपना स्टेटमेंट करिए। ये अब क्या करें, उन्होंने वो अख्तियार किया है। मैंने बीमारी, मैं समझता हूं कि कोई भी बीमारी हो तो उसको तो हम सभी लोग मिलजुल कर दूर कर सकते हैं। मैं यदि धैर्यपूर्वक सुनता हूं तो ये अपेक्षा भी करता हूं। और मैं अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि यह सवाल पूछना है, उसका उत्तर मुझसे हासिल करना है, तो मेरे बोलने के बाद आप पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। कृपया मेरी बात सुन लें। मैं ये जानकारी दे रहा था कि अब तक हमारी गुजरात सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। और लेकिन स्पेशल कोर्ट बनाने का काम बिना हाई कोर्ट की कंसेंट के नहीं हो सकता, लेकिन हमारी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि स्पेशल कोर्ट बनाई जाए इसकी हियरिंग के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी दंडित किया जा सके। और इस मामले के लिए एक विशेष लोक अभियोजक को सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। जांच अधिकारी को 60 दिनों में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करना है, यह भी कहा गया है। 7 पीड़ितों में से जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, 4 को उपचार के बाद रिहा किया जा चुका है और 3 पीड़ित राजकोट सिविल हॉस्पिटल में उपचार करा रहे हैं और उनकी देखरेख ठीक तरीके से हो रही है। सभी पीड़ितों के इलाज का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदया। और वहां पर हमारे गुजरात सरकार के कई मंत्री स्वयं हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने उनके कुशल क्षेम को पूछा है और साथ ही ट्रीटमेंट ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन लोगों ने स्वयं ट्रीटमेंट ठीक तरीके से चल रहा है, इस बात की भी जानकारी दी है। मैं महोदया सचमुच गुजरात सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के घटित होने के बाद जितनी तेजी से और जितनी प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, मैं
मैं यह मानता हूं कि दलितों पर जो इस प्रकार की अत्याचार की घटनाएं होती हैं, नहीं, खड़े रहेंगे, आज मैं दिन भर खड़ा रहूंगा। प्लीज, दिस इज नॉट द वे। बैठिए, चिल्लाने से नहीं होता, बैठिए। वेणुगोपाल जी, क्या है ये? गोरिया जी को आप बाद में पूछिए ना क्यों किया। बैठिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। बैठिए, प्लीज, बैठिए। वेणुगोपाल जी, ये सही तरीका नहीं है। ही इज प्रेजिंग गवर्नमेंट, नॉट दैट पर्सन। प्लीज बैठिए, ऐसा नहीं होता है। बैठिए, प्लीज। कोई रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये शून्यकाल हो जाएगा, सही में शून्यकाल। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। केवल चिल्लाना हो तो चिल्ला सकते हैं। भगवान जी, आप बैठिए। यस अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता था कि दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं, चाहे किसी भी राज्य पे क्यों न हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो अथवा कांग्रेस शासित राज्य हो अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा शासित राज्य क्यों न हो, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। और इसे मैं एक विडंबना मानता हूं कि आजादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी इस प्रकार के दलितों पर अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, सोशल इविल मानता हूं, और इसे एक सोशल प्रॉब्लम मैं मानता हूं। और मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, इस बहुत बड़ी एक सोशल इविल को, एक सोशल प्रॉब्लम का यदि हम समाधान करना चाहते हैं तो इसे एक चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हम सभी को एकजुट होकर इस बुराई को अपने भारत देश से समाप्त करना पड़ेगा। खड़गे जी, ये बैठ के बोलने की परमिशन ऐसी ही दे दी है, क्या है? हर कोई सदस्य उठ के बिना परमिशन के बोलेगा। मैं हरियाणा की घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूं, हरियाणा के दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मत भूलिए। प्लीज बैठिए। अरे भाई, है सब कुछ है डिटेल हमारे पास, ये सुनना नहीं चाहते क्यों ये सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए प्लीज। आप जो बोलेंगे सब मैं सुनूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कृपया आप सुन लीजिए।